Assalamu alaikum, my dear students. This is a revision video. We have already learned this topic. The topic is real numbers. The question is exercise 1.1 book 8 Khan board. Identify which fractions are terminating, which are recurring decimal fractions. So how are we going to do this? We are going to discuss the basic concepts and then we will come back to the questions. Okay, let's start with the basic, very basic. Basically we have numbers, we have real numbers. What are real numbers that we use in our daily life? And we have imaginary numbers. We have these two types of numbers. As the chapter is called real numbers, so we are going to discuss real numbers. There are two types of real numbers: rational numbers and we have irrational numbers. Miss, what are rational numbers? What are irrational numbers? Before we come to rational and irrational numbers, let me start from natural numbers, because you know about natural numbers really well, right? What are natural numbers? Natural numbers are denoted by capital N and they start with 1. 1, 2, 3, 4, on and on. All the numbers are natural numbers. If we add a 0 to the natural numbers, they become whole numbers. They become whole numbers. Whole numbers are denoted by a capital W. 0, 1, 2, 3, 4, on and on. These are called whole numbers. And whole numbers are a part of integers. Oh my god, what are integers? Basically this is 0, and as we move on the number line towards right hand side, you know that the numbers keep increasing, right? So we have all the positive numbers over here and we have all the negative numbers over here, -1, -2, -3. So as we move towards the left hand side, the numbers keep decreasing. So here you should also learn this concept that 0 is greater than all the negative numbers. 0 is greater than -1, 0 is greater than -100 and all the negative numbers 0 is greater than them. जब हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स हमारे पास छोटे होते जाते हैं. सो -3 इज़ लेस देन -1. माइनस में याद रखें, नंबर जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा. इफ़ वी हैव -3 एंड वी हैव -1, so -3 is not greater than -1. -1 is greater than -3. This here, this symbol, this is called face and this is called tip. तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी तरफ फेस बनता है और जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ टिप आती है. दिस इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर देन एंड दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लेस देन. यू कैन नोट डाउन दीज डिटेल्स सो दैट you know everything, right? So we were discussing the integers. होल नंबर्स हमारे पास क्या हैं? देखिए 1 ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स. अगर नेचुरल नंबर्स में 0 भी मिला दें तो ये हो जाएंगे हमारे पास होल नंबर्स. अब अगर हमारे पास 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं. सो दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स. तो इंटीजर्स का मतलब है 0, पॉजिटिव एंड -1, पॉजिटिव एंड -2, पॉजिटिव एंड -3 एंड सो ऑन. यानी इसमें 0 भी आ जाएगा, प्लस 1, 2, 3, 4, 5 ये सब भी आ जाएंगे, -1, -2, -3 ये सारे नंबर्स भी आ जाएंगे. सो बेसिकली होल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z, नॉट I, कैपिटल I. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा. इसको कैपिटल I से शो नहीं करते. नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से शो करते हैं, होल नंबर्स को W से शो करते हैं, इंटीजर्स को हम Z से शो करते हैं. और इंटीजर्स हमारे पास हमें आपको क्लियर हो गया होगा, इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी आ जाता है. अब ये जो इंटीजर्स हैं ये मिलके हमारे पास रैशनल नंबर्स बनाते हैं. तो मिस इंटीजर्स रैशनल नंबर का पार्ट हैं? बिल्कुल हैं. और रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी कि ऐसे करके लिख सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, राइट? अब इसमें हमारे पास दो बातें हैं. ये जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है,
दे विल बी अ पार्ट ऑफ इंटीजर, यानी इसमें हम कोई भी इंटीजर लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। पहली बात ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और इंटीजर्स में से लिखेंगे, यानी पहले इंटीजर्स हैं ये सिंपल, अब इंटीजर्स को ऊपर नीचे करके लिख देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, सिंपल एज दैट। इसमें एक कंडीशन ये है, इसमें आपने ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो, कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो मैथ एरर आ जाता है, ठीक है। ज़ीरो को अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर आप यूज़ करें अपने मोबाइल में कि 0 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, सो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0 करती हूँ, 11 डिवाइडेड बाय 0 करती हूँ, तो ये आपके पास आता है मैथ एरर, राइट। तो आपने ये याद रखना है कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन where the denominator and the numerator belong to our element of, it means our element of integers, यानी ये जो numerator denominator है ये कोई सा भी integer हो सकते हैं, लेकिन denominator ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम जो है वो रैशनल नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको किससे डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q, इसको R से बिल्कुल भी डिनोट नहीं किया जाता। अच्छा, इसके साथ हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स को हम जो है वो Q डैश से डिनोट करते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने पास लिखें ज़रूर। देखिए, आप सुनते हैं, आपको आसान लगता है, आपको लगता है हमें समझ में आ गया, लेकिन आप इसको लिखोगे खुद से तो आपको ये सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। वीडियो बना दी है, ज़्यादातर आजकल बच्चे मोबाइल पे होते हैं, तो अब मोबाइल आप देखो और चीज़ें भी देखो, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाओ, 5-10 मिनट गेम्स खेल लो, लेकिन फिर इसको भी देखो थोड़ा सा, और ये कॉन्सेप्ट्स आप बार बार देखोगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि रैशनल नंबर्स को क्या किया जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से लिखा जाता है, और ये पार्ट होते हैं इंटीजर्स का, और डी हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा। इर्रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स के अंदर इसको जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू दिस फ्रैक्शन फॉर्म एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस फ्रैक्शन फॉर्म, यानी इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इसमें जो है वो, और ये डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अब इसमें हम थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं अगर रैशनल नंबर्स को, तो इसमें पहली कैटेगरी हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देखें, जब फ्रैक्शन आएंगे आप उसको चेंज करोगे, तो उसको आप जब चेंज करोगे तो वो डेसिमल में तो ऑब्वियसली जाएगा, राइट। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, यानी डेसिमल नंबर्स की, तो इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे 4.5। अब आप देख सकते हो टर्मिनेट का वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद सिर्फ 5 लिखा हुआ है, लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी ये चलता तो नहीं जा रहा, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब अगर ऐसे लिखा हुआ हो 4.5, 5, 5, 5 और ये चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब when we have limited digits after the decimal, and this is non terminating if we have unlimited number of digits after the decimal। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो चलते ही जा रहे हैं नंबर, डॉट 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 मेंशन है, इसको एक तरह इस तरह से लिखा जाता है, या फिर इसके ऊपर आप बार लगा दें तो इसका भी वही मतलब होता है। 4.5 बार का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि 4.555 डॉट डॉट डॉट, यानी ये चलता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में हमारे पास एक तो हमने इसको डिस्कस किया, और एक हमारे पास जो है इसमें नंबर्स आते हैं जैसे पाई है, या हमारे पास जो है वो ई की वैल्यू है। तो ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे पास, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, एज यू कैन सी इट ओवर हेयर, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज़ लेते हैं तो पाई की वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास आती है 3.14159265। एज यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ पे डिजिट्स हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। But can you see a difference? Can you see a pattern over here? 0.5555 same number repeat हो रहा है. So when a same number occurs and keep occurring, occur, you must have heard this word occur, यानी किसी चीज़ का वाक़या होना, रीअकर मतलब बार बार होना।
सो एक नंबर बार बार हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिकरिंग। तो अगर कोई नंबर हमारे पास रिकरिंग है यानी बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको रैशनल नंबर की कैटेगरी में लिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे ये है 3.14159265, ये नंबर चलता जा रहा है लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो दिस नंबर इज़ कॉल्ड नॉन रिकरिंग, यानी इसमें हमारे पास कोई ख़ास पैटर्न या कोई ख़ास डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर हम ई को देखते हैं, इसकी वैल्यू 2.71828818, तो यहाँ पे भी हमें कोई ख़ास पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि भाई कोई ख़ास नंबर बहुत रिपीट हो रहा हो। तो इन नंबर्स को नॉन रिकरिंग कहा जाता है, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स में एक तो वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो जाएं, जैसे लिखा हुआ है 4.5, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, तो जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 1/2 गिवन है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे इस तरीके से। अच्छा, ये भी मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास जो छोटा नंबर होता है उसको आमतौर पे बाहर लिख लेते हैं, बड़े नंबर को अंदर लिख लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमेशा बाहर लिखा जाएगा एज अ डिवाइज़र, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइज़र, एंड 1 दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड, इसको डिवाइज़र कहा जाता है, और दिस नंबर इज़ कॉल्ड डिविडेंड, इसको डिविडेंड कहा जाता है। तो हमेशा न्यूमरेटर बिकम्स योर डिविडेंड। पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 लिया, 2 5 are 10, सो वी हैव 0.5। एज यू कैन सी कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो सब रैशनल होते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर गिवन होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 9, वी नो दैट रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, so this is also terminating, this is a rational number. What about non terminating and recurring numbers? अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर गिवन है, आप देख सकते हैं कि 5 is being repeated, so this is recurring। जब भी recurring होगा तो वो rational number होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे गिवन था, आपने सॉल्व किया तो टर्मिनेट हो गया, तो रैशनल नंबर है। इसी तरह से इफ़ आई सॉल्व 1/3 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, और ये हमारे पास 9, देन अगेन 3s are 9, so it is being repeated the same number 0.3333, it is being repeated। तो रिकरिंग अगर होगा तो वो हमारे पास इर्रेशनल होगा। अगर इस तरह से गिवन है ऑलरेडी तो यू कैन सी कि रिकरिंग है तो रैशनल है, और अगर यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आप इसको डिवाइड करके देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है या नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये क्वाइट क्लियर हो गया है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं इर्रेशनल को। इर्रेशनल में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे जो चलते जाएंगे, लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे, उसमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं होगा, यानी वो नॉन रिकरिंग होंगे। तो इसमें पाई की वैल्यू आ जाएगी, ई आ जाएगा, और इसमें सारे जो है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √7 है, √2 है, तो इसका अगर आप रूट लेते हो तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है, नॉन रिकरिंग नंबर आता है, दैट्स वाई दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया, तो हम अपने क्वेश्चन पे चल सकते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, एज यू कैन सी वी हैव 4/6, कैंसिलेशन के बाद वी हैव 2/3। इसको जब हमने डिवाइड किया है यहाँ पे 0.666, यू कैन सी कि ये हमारे पास चलता जा रहा है, तो दिस कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, ऑफ कोर्स दिस इज रिकरिंग, सो आई हैव रिटन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देन वी हैव 11/12, तो यहाँ पे हमने इसको 12 के टेबल से सॉल्व किया है, 0.91। अब मैं अगर इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो 6, तो यू कैन सी द पैटर्न ओवर हेयर कि 6 इज बीइंग रिपीटेड सो मैनी टाइम्स, सो दिस इज ऑल्सो रिकरिंग। देन वी हैव 1/3, अभी हमने एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया था, सो इफ़ वी सॉल्व दिस 0.333, दिस इज ऑल्सो रिकरिंग। देन वी हैव 2/5, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो वी हैव 0.4, एज यू कैन सी लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, चलता तो नहीं जा रहा है ये, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। देन वी हैव 8/11, इसको अगर हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ आप सॉल्व करते जाएं वीडियो पॉज करके, तो आप देख सकते हैं कि 0.7272, अनदर वे ऑफ राइटिंग इट इज़ 0.72 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा के भी आप इसको शो कर सकते हैं, दिस इज रिकरिंग। Then we have the next part, here we have 0.4166, repeat हो रहा है बार बार, this is recurring. Then we have this one, 5/7, as you can see। अच्छा, ये जो 7 वाले होते हैं ना, the fractions which have 7 as the denominator, ये बहुत ट्रिकी होते हैं। इसके अंदर क्या ख़ास बात होती है कि यहाँ पे देखें,
आप सॉल्व करेंगे 7, 1, 4, 2, 8, 5, तो यहाँ तक आते आते आपको लगता है कि ये तो कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये जो है वो फिर ये तो फिर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये रिकरिंग है। ये जो है वो हमारे पास ये नॉन रिकरिंग है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते ही जाएं, जैसे आप यहाँ पे देखें कि हमने इसको सॉल्व किया, 7 7 49, देन 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56, 7 5 35, तो इसके बाद एक पॉइंट आता है कि हमने 50 से स्टार्ट किया था और फिर एंड में हमारे पास दोबारा 50 आ गया। तो अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगी तो हमारे पास दोबारा 7 के बाद 1 4 2 8 5 दोबारा आएगा। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर 7 होगा तो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। एज यू कैन सी आई हैव पुट अ बार ओवर हियर कि यहाँ पे 5 के बाद दोबारा से 7 1 4 2 8 5 आएगा। सो दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास 0.6 है, दैट इज टर्मिनेटिंग ऑफ कोर्स। हियर यू कैन कैंसिल इट आउट, वी हैव 4/5, 0.8, ऑफ कोर्स लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स एंड चलता तो नहीं जा रहा, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर चलता जाएगा तो रिकरिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स द रूल। आप देख सकते हो यहाँ पे हर नंबर का पॉइंट उसके राइट हैंड साइड पे होता है, और यहाँ पे वी हैव टू कैंसिल दिस 0, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एज वी हैव 1 0, तो ये एक टाइम शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 zeros होते तो इस पॉइंट को हम 2 टाइम्स शिफ्ट करते। सो 9/10 इज इक्वल टू 0.9, दैट इज टर्मिनेटिंग। 1/8 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, ये पूरा डिवाइड हो गया। एज यू कैन सी 0.125 है तो बड़ा, लेकिन यहाँ पे 3 में ये सॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो गया। चाहे कितने भी नंबर्स आएँ, जैसे कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2.353535। अब ये रिकरिंग है या ये टर्मिनेटिंग है? एज यू कैन सी यहाँ पे कोई डॉट्स भी नहीं है, इस पर बार भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कितना भी लंबा हो, लेकिन क्योंकि ये ख़त्म हो गया है आफ्टर अ पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दैट कैन बी अ मिसकंसेप्शन। अच्छा, इसके बाद वी हैव 14/20, इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव 7/10, लाइकवाइज इसका पॉइंट शिफ्ट करके 0.7, दिस इज टर्मिनेटिंग। देन वी हैव 2/3, इसका आंसर 0.6 डॉट डॉट डॉट, ये नहीं चलता जाएगा इस तरीके से, एज यू कैन सी, सो दिस इज रिकरिंग। देन वी हैव 4/5 इज इक्वल टू 0.8, ऑफ कोर्स दिस इज टर्मिनेटिंग। 1/4 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के हमने 0 लिया, 4 2 8, आई होप यू नो हाउ टू डिवाइड, 4 5 20, सो दिस इज टर्मिनेटिंग, राइट। देन वी हैव 7/9, इसको हम सॉल्व करते हैं 0.777, दिस इज रिकरिंग, ठीक है। इसके बाद वी हैव 8/10, दैट इज इक्वल टू 0.8, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। 3/5 is 0.6, that is also terminating. So that is the end of question 1. In the next video we are going to discuss question 2, that is separate rational and irrational numbers. I hope that you have got it. सॉल्यूशंस सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और इस तरह से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। I hope that you have got it, and in the next video we are going to start question 2 of exercise 1.1.